कुछ भी आता। और मैं एक ट्रिक बताऊंगा, बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो मजा आ जाएगा आपको, क्योंकि 2-3 लोगों के लिए ये वर्क की है और अच्छी की है। मेरे लिए भी थोड़ी बहुत, मान लो 5-6 मार्क्स और दिलाए थे, किसी किसी को ज्यादा भी दिला सकती है। मैं ट्रिक एंड में बताऊंगा एक। बट ना जिसको आपने देखा वो था आशीष कुमार। आशीष कुमार, fine. He is my friend. He was my friend. We have studied our ninth, 10th, 11th, and 12th standard together. Alright. And the interesting fact is, guys, this guy belongs to biology background, which means he has attempt like he has taken not he has not taken PCM, he has taken like PCB. आई स्टिल रिमेम्बर हमारी बायो एंड मैथमेटिक्स की क्लास चेंज होती थी जब हम कोचिंग जाते थे. फाइन. नाउ दिस गाय हु कम्स फ्रॉम अ बायोलॉजी बैकग्राउंड वेंट on to clear his AFCAT examination with 193 marks and getting recommended from AFSB Varanasi. All right. So now, guys, I want to ask you. You come from a B Tech, a BE, or you belong to Bachelor's of Science, and you have hotel management. So all of you guys are familiar with what mathematics. And this guy do not even know what maths was. Okay, when he was starting his preparation. Fine. So he has shared all of his experiences in this video. That is why I want you guys to watch this video fully till the last, so that he could be like his every experience, like whatever he went through, ups and downs, which he had discussed in this video. I want you to watch it, because this half an hour is going to change your perspective towards your AFCAT examination. Definitely, clearly he is an example. फाइन. क्योंकि बायोलॉजी का बंदा आप आके 18 में से 15 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है मैथमेटिक्स में, वो भी एफकैट का. सो इट इज डेफिनेटली achievement, if I can say. Fine. And you have all the liberty, guys, like you have all the liberty to choose. And इसने कोई अपनी graduation भी कोई maths background से नहीं की थी. So he has been switched himself off for say what, around 6 years from mathematics, come again, and then started preparing and went on to score 15 question right, and also scored 193. Also is a recommended guy. Okay, so इसकी जो story है, it becomes very important for you. I want you to watch it till the end. Also subscribe and like. ये इसको मैं छोड़ने नहीं वाला हूँ, ये हमेशा आते रहेगा. ठीक है. So yeah. Hey guys, how are you? I hope that you guys are doing well. So he's Ashish Kushwa, जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड था. बेस्ट फ्रेंड, हमारी ग्रुप थी, गैंग थी, हम लोग नाइन्थ, 10th, 11th, 12th आर्मी पब्लिक स्कूल मऊ में साथ में पढ़े. अगेन जैसे कार्तिक कदम के साथ था, ये भी मेरा ही दोस्त था. एंड हम लोग लिटरली साथ में कोचिंग भी जाते थे, क्लासमेट था. Now, why he is so much important and why do I want you to watch this video fully is because this is a guy who comes from a bio background and went on to clear AFCAT examination with a very good marks. 193 ना भाई. 193। या एंड 193 उसके बाद में recommend भी हुआ है. So I don't find anyone else would have given you this sort of जो एक्सपीरियंस है, जो कि अभी AFCAT अप्रोच हो रहा है, जो इसकी एक्सपीरियंस होगी वो आपके बहुत काम आने वाली है. एंड दैट इज व्हाई आई वांट यू टू वॉच दिस वीडियो फुल्ली. Before starting, congratulations Ashish for the recommendation. And थैंक also यू भाई। also जो भी आप बोलने वाले हो, आपकी जो भी वर्डिंग्स है वो बहुत वैल्यूबल रहने वाली है. तो आई वांट यू टू बी थोड़ा सा प्रिसाइज फॉर दैट एंड वॉच इट लाइक ऐसे बोलना ताकि जो व्यूअर्स है उनको समझ में आए, एंड उनके लिए बोलना. ठीक है. सबसे ठीक पहली है। बात सबसे पहली बात, आप ओके। मास्टर्स कर रहे हो अभी. राइट. हाँ यार, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ अभी। आपने मास्टर्स करते करते, टाइम मैनेज करते करते, आप डेफिनेटली आप सिर्फ एफकैट नहीं एम कर रहे हो, आप मास्टर्स भी नहीं। कर रहे हो. आप अपनी पढ़ाई भी, मास्टर्स की पढ़ाई भी कर रहे हो, साइकोलॉजी में जो मास्टर्स होता है उसकी भी पढ़ाई कर रहे हो. एंड उसके साथ हाँ। में आप एफकैट भी क्लियर करते हो और रेकमेंड भी होते हो. सबसे पहले, बिफोर गोइंग फॉर द सिलेबस, आई वांट यू टू टेल मी कि कैसे और कितने बजे कितना टाइम आप डेडिकेट करते थे. ठीक है, फिर उसके बाद में सिलेबस पे आते हैं. देख देख यार इंचल, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द मोटिवेशन, कितना है तुम्हारे अंदर उस चीज को क्लियर करने के लिए।
जो भी एग्जाम हम एम करते हैं, हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि हमें सिलेबस खत्म करना है या कुछ करना है। वी वर्क फॉर द मोटिवेशन, और क्या एम है हमारा, हम उसके लिए काम करते हैं। सो मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर था कि मुझे फोर्सेस में जाना है, तो मैंने एफ कैट सी डी एस इन सब का मतलब स्टार्टिंग से प्रिपेयर करना कर दिया था। सो यार, दो अप्रोचेज मैं आज शेयर कर दूंगा। फर्स्ट कि जब लॉन्ग टर्म, जब हमारे पास टाइम है अच्छा, अगर कोई अभी नेक्स्ट फैक्टर को फोकस करे तो वो कैसे प्रिपेयर करे। जैसे मैंने स्टार्टिंग कैसे बिल्कुल मतलब मैथ्स छूट ही गया था पूरा। जैसे कि 10th से मैथ्स छूट गया था, फिर बीच में मैंने स्टार्ट किया था थोड़ा बहुत नीट के लिए जब फिजिक्स कर रहा था, बट उसके बाद फिर 3 साल बिल्कुल छूट गया था। फिर कैसे बिल्कुल बेसिक से खुद को मोटिवेट कर करके आप कैसे ब्रेक पॉइंट्स भी आएंगे जब क्वेश्चन नहीं बनेंगे, वो सब मैं बता दूंगा। और सेकेंडली जब एग्जाम बिल्कुल एफकेट आने वाला हो, हाँ, सो जैसे कि अभी सिर्फ 15 दिन ही बचे, 27, 28, 29 को है। सो क्या ये लास्ट के डेज में क्या अप्रोच रहनी चाहिए, वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा। सो ये दो मैं करूंगा, और बेसिकली जो टाइम मैंने मैनेज किया था कि कैसे प्रोडक्टिव मैनेज करो कि आपका एफकेट भी कवर होता जाए, सीडीएस भी कवर होता जाए। सो वो भी मैं यार बताते जाऊंगा जैसे जैसे सेशन आ जाता है। ठीक है। सो ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यार आपने टाइम मैनेज कैसे की? क्योंकि देखो मैं भी वर्किंग कैंडिडेट हूँ, जो भी एफकेट दे रहा है वो आफ्टर ग्रेजुएशन ही देगा। मोस्ट प्रोबेबली देयर आर ओनली 10, 15, 20% जो कि ग्रेजुएशन के साथ में देते हैं, जो फाइनल ईयर के होते हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स होते हैं वो ग्रेजुएशन के बाद, मतलब आई कैन एज्यूम दैट दे आर वर्किंग। ठीक है, वो तो सुबह 9 बजे से आई एम एज्यूमिंग दोपहर को 3, 4 बजे तक बिजी है। उसके बाद जो आपने अपना टाइम मैनेज किया, मैं आपका टाइम शेड्यूल जानना चाहता हूँ। देखो यार, मेरे लिए एक एडवांटेज कह सकते हैं कि जब मैंने सोचा था कि मुझे स्टार्ट प्रिपेयर करना है, तब लॉकडाउन लग गया था। सो तब कॉलेज बिल्कुल बंद हो गया था। सो जब आपको सब, मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी टाइम की, और मुझे वो टाइम मिल गया था। सो उस चीज को मैंने ऐसे टाइम वेस्ट नहीं किया कि मैं मूवीज देख रहा हूँ, सीरीज खत्म कर रहा हूँ या कुछ भी। एट दैट टाइम मैंने सोचा कि ये पता नहीं 1 महीना मिल रहा है, 2 महीने मिल रहे, पता नहीं कितने मिल रहे, किसी को पता नहीं था, 1 वीक भी मिल सकता था। तो जब मुझे ये पता चला कि मेरे एग्जाम कैंसिल हो गए, तो मैंने थोड़ा डायरेक्शन लिया और मतलब नहीं, मेरा मैथ्स मुझे स्टार्ट करना है। सो अगर उसके अलावा देखूँ तो मेरे क्लासेस वगैरह रहते हैं, सब कुछ रहता है। सो मैं जनरली रात को पढ़ता हूँ यार, मैं दिन में इतना नहीं पढ़ पाता हूँ, मैं रात में पढ़ता हूँ। और रात में जो मैथ्स को मैं ज्यादा टाइम देता था, क्योंकि मेरी रीजनिंग वाज क्वाइट स्ट्रांग, अच्छी है रीजनिंग, तो उसको मैंने इतना बस जब क्वेश्चंस करता था तभी करता था। जो मैथ्स था, हाँ, उसको मैं देता था यार करीबन 2 घंटे तो देता था। लाइक इवनिंग में दे दिया, नहीं तो रात को, फिर रात को दे दिया। और जीएस था, जीएस मेरा सीडीएस के साथ कवर हो रहा था, तो कुछ स्पेशल ऐसा नहीं किया। और सेम फॉर द इंग्लिश। और इंग्लिश में मैंने फोकस किया था बिकॉज मुझे पता है कि वो अपना स्कोर बढ़ाती है, और हम वहाँ पे अगर नेगेटिव स्कोर, क्योंकि कॉन्फिडेंस में हम टिक तो कर देते हैं कि यार इतनी इंग्लिश तो आती है, बट वो हमारे मार्क्स भी गिराती है। सो मेरा मेन टारगेट इसमें क्लियर करने के लिए मैथ्स बहुत ज्यादा था, क्योंकि मैथ्स एक कॉन्फिडेंस देता है आपको। और दूसरा था इंग्लिश भी बहुत था। और ओके। टाइम जनरली मैं रात को पढ़ता था। टाइम, या वही कमिंग बैक, लाइक जो आपने बोला वो बिल्कुल सही है। जो अपना हम उस सिलेबस की पार्ट में थोड़ी देर में आएंगे, बट व्हाट डू आई वांट फ्रॉम यू एट दिस टाइम इज लाइक, पहला क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने कितना टाइम डेडिकेट किया? ठीक है, क्योंकि इवन कुछ लोगों के लिए 8, 10 घंटा दिया तो भी कम होता है। कुछ लोग ना 1, 1, 2, 2 घंटा दे के भी, जैसे कार्तिक से बात कर रहा था मैं, वो सिर्फ 2 घंटे देता था और वेंट ऑन टू क्लियर, गॉट रिकमेंडेड ऑल्सो। वैसे मैं आपका पूछना चाहता हूँ कि आप कितना टाइम डेडिकेट कर रहे थे? मैं यार मैथ्स के लिए तो डायरेक्ट 2 आवर्स तो मिनिमम में कहीं से भी दिन में निकाल ही लेता था। मतलब एंड तक लास्ट जो मैंने दिया था टैब में, तब तक मैं पूरा 2 घंटे तो कैसे भी मैथ्स के लिए निकालता ही था। और बाकी बचा मैं डेली, मेरा ये था कि स्टार्टिंग से ही मैं कहीं ना कहीं से मॉक टेस्ट करता रहता था। क्योंकि एक बार आप सिलेबस खत्म कर लेते हो ना, क्योंकि सिलेबस खत्म करने में सबका अपना अपना टाइम रहता है, सबका अपना अपना वो रहता है कि आप कैसे सिलेबस खत्म करते हो, तो तब तक तो आप फ्री हो कैसे भी यूटिलाइज करो। बट जब एक बार आपका सिलेबस खत्म हो गया, आप पे कॉन्फिडेंस आ गया है, तो मेरा ऐसा था कि मैं पहले डेली एक क्वेश्चन पेपर जरूर लगाता था। सो मान लो 2 आवर्स का होता है, मैं 1.5 घंटे में खत्म कर लेता था। और फिर उसके बाद उसको पूरा सॉल्व करता था। ठीक है, तो मान लो 3 to 4 आवर्स डेली मेरा एफकेट के प्रिपरेशन के लिए डेली जाता था। Okay, so 3 to 4 hours. Now, this 3 to 4 hours is for the guy who don't know mathematics. Guys, like
the people who are watching at this time, I want you to, know the thing that this is a guy who comes from a bio background, and this is such a big news. कि यार हम as an engineer, there are a lot of people who are an engineer who comes from BSc background, who knows mathematics, who have never left mathematics in their tenure, still don't clear it. Now this is a guy who's an example who shows that कि आपको अगर आप चाहोगे तो कोई भी एग्जाम क्लियर होने का क्लियर कर सकते हो आप. Now this is like, अगर ये बंदा अगर 3 से 4 घंटे डेडिकेट कर रहा है, जिसको मैथ्स नहीं आती थी, मतलब आती थी, छोड़ चुका था 10th क्लास में, उसके बाद पीसीबी लिया था ना तूने, मैथ्स तो छुआ भी नहीं था तूने. सो हमारा नहीं, सिर्फ फिजिक्स थोड़ा बहुत मैथ्स और बायो क्लास अलग हो शिफ्ट गए हो थे, जाता अलग था, हो गए अलग हो जाता था. हम फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए साथ में बैठते थे कोचिंग में. आई स्टिल रिमेम्बर विजय एजुकेशन. थे. सो वो मैं अभी भी जानता हूँ. सो मैथ्स उसने छोड़ दिया, वो अभी वापस आके. सो why am I saying this is कि अगर ये बंदा क्लियर कर सकता है तो आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हो. मैथ्स में 18 क्वेश्चन इज नॉट वेरी बिग ऑफ अ टास्क. यू कैन डेफिनेटली, यू कैन थ्रो सम एग्जैक्टली. लाइट ऑन दैट ब्रो. ओके, सो बेसिकली मैं उनके लिए बताता हूँ मैथ्स जिनका थोड़ा सा बायोलॉजी बैकग्राउंड है या फिर मैथ्स उतना अच्छा नहीं है, और उनके पास अभी 15 जितना भी दिन बचे हैं उतने ही दिन है उनके पास. तो उनको ये सजेस्ट करूंगा, कोई भी टेस्ट सीरीज उठा लो, कोई भी टेस्ट सीरीज उठा लो, डेली एक टेस्ट आप दो, और उसके बाद जो भी क्वेश्चंस रहते हैं उनको अच्छे से कर लो. मतलब अच्छे से, मतलब उसके पीछे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, हमने कोई क्यू यूज किया, अगर कोई वर्क है तो वर्क को हाफ क्यों लिया है, या कोई भी चीज है, जस्ट एन एग्जाम्पल, कोई भी चीज है वो क्यों हुई है वो फाइंड कर लो. अगर आप डेली भी इतना इतना करते जाते हो ना, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहेगा. सो अगर ऐसे भी आप डेली करते हो, तो आप 18 क्वेश्चंस 18 क्वेश्चंस 18 क्वेश्चंस और उनके टाइप्स करते हुए आपके पास अच्छा खासा एक, आपका ही एक वो बैंक बन जाएगा मैथ्स के क्वेश्चंस का, जिससे ज्यादा क्वेश्चंस बाहर नहीं आएंगे. अगर आप इतना भी कर लेते हो तो आई एम श्योर कि 18 में से 13-14 आप इजीली कर जाओगे, अगर इतना ही टाइम है. सो ये उनके लिए था जिनके पास बहुत ही कम टाइम. अब बात करते हैं यार जो रियल में बायोलॉजी बैकग्राउंड से जिनको एफकेट क्लियर करना है या बहुत टाइम हो गया मैथ से ब्रेक हो चुका है, सो उनके लिए सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप सिलेबस देखो. ठीक है, मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले सिलेबस देखा था. मैंने अच्छे से सिलेबस देखा, मैंने एक एक चीज देखी कि यार टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, प्रोपोर्शन है, रेशियो है, मैंने हर चीज देखी. फिर उसके बाद मेरा पहला अप्रोच था कि मुझे पूरे को पता होना चाहिए कि इसमें आता क्या क्या है. सो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखना स्टार्ट किए, और मैंने हर एक टॉपिक सिर्फ देखा ऊपर ऊपर से, देखता गया देखता गया देखता गया, तो मुझे एक बार रफ आइडिया हुआ कि हाँ, इस चीज में ऐसा ऐसा होता है. और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपने कभी पढ़ी नहीं होगी, 10 तक सबने पढ़ी है ये. सो वो एक रिकैप हो जाता है ब्रेन में वापस. तो मुझे ऐसा हो गया था, ठीक है ये कुछ इतना हार्ड नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया वीडियोस देख के. उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट अप्रोच थी, मैंने क्या किया, जैसे कि एक बार एक टीचर की देखी, तो नेक्स्ट टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था मैथ्स वापस करना, मैं दूसरे टीचर की वीडियो देखता था और साथ में क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट किया. मैंने अभी क्वेश्चंस नहीं लगाया क्योंकि मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था, और कोई भी हम एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्वेश्चन लगाने में कॉन्फिडेंस चाहिए. तो मैंने जैसे ही मेरा एक बार का खत्म हो गया था, मैंने दूसरे टीचर के वीडियो स्टार्ट किए. कोई भी टीचर के वीडियो देखो, इट डजेंट मैटर, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट है. तो मैंने देखना स्टार्ट किया, मैं वीडियोस देखता था और साइड बाय साइड क्वेश्चन करता था. मैंने फिर ऐसे जब मेरा ये खत्म हुआ ना, जब मैंने क्वेश्चंस लगाने 50 क्वेश्चन एक टॉपिक से करो, इजीली हो जाते हैं इफ यू हैव टाइम. और अगर नेक्स्ट एफकेट को कोई टारगेट कर रहा है उसके लिए इजीली हो जाएंगे 50-50 क्वेश्चन. ये होने के बाद नाउ ओनली फोकस ऑन दी क्वेश्चंस. एक बार आपका ये हो गया ना, रिवीजन हो गया, आपने थोड़े थोड़े नोट्स भी बना लिए, और सजेस्ट करूंगा एक कोई सी बुक ले लो, कोई भी एफकेट की कोई भी बुक ले लो. बुक इसलिए क्योंकि बुक में आपके फॉर्मूलाज वगैरह सब एक साथ आपको सब कुछ मिल जाता है. कोई भी बुक ले लो, मैं कोई ये नहीं बोलूंगा ये ले लो, जो आपको सही लगे आप वो बुक ले लो. वो इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ बिकॉज उसके अंदर आपको फॉर्मूलाज, प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत और शॉर्ट ट्रिक्स या क्वेश्चंस रहेंगे. सो फिर मेरी एक बुक थी, मैं उसको पूरा मैंने अच्छे से मैथ्स में कर लिया था. सो ये मेरी एक, और फिर उसके बाद वही जो मैं एंड में करता था, मैंने फिर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी थी. मैं डेली एक टेस्ट सीरीज लगाता था, अच्छे से उसको एनालाइज करता था, ऐसे ही मेरी प्रैक्टिस होती रही. और जो किसी टॉपिक में ऐसा लग रहा है कि यार नहीं हो पा रहे हैं, या टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है या नहीं हो रहा है, सो फिर मैं वापस यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख लेता सिर्फ उस टॉपिक की, और वो टॉपिक ब्रशअप हो जाता था, देन अगेन अगेन टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देता. सो ये उनके लिए जो बायोफील्ड से या फिर जिनका मैथ से टच छूटा हुआ है. कई बार ऐसे ब्रेक डाउन पॉइंट आएगा, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, यार कोई बायोफील्ड से नहीं भी हो, क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, आप स्पीड में लैग कर रहे हो, सब कुछ होगा. मेरे साथ भी होता था कि
जो टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ उसका कट ऑफ ही नहीं क्लियर हो रहा है, वो मोमेंट है कि वहां से आपको लगे रहना है। अगर वो मोमेंट पे आप लगे रहे ना, क्योंकि आप मैथ्स जब इतने टाइम छोड़ा हुआ रहता है ना, तो कई कई कुछ कुछ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो होते ही नहीं है, होते ही नहीं है। तो अगर वहां पे लगे रहे ना और वही स्पीड से चलते रहे, तो वो क्वेश्चंस भी होने लग जाते हैं। इट्स जस्ट टाइम फैक्टर होता है, प्रैक्टिस फैक्टर होता है, और वो क्वेश्चंस भी होने लग जाते हैं। और कई बार होता है हमें लगता है कि टॉपिक बहुत अच्छे से आता है, इतनी बार पढ़ लिया फिर भी क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे। रिलैक्स, वो क्वेश्चन भी विद टाइम बनने लग जाएंगे, जस्ट कीप ऑन गोइंग। ओके, सो बेसिकली आपने कोई भी पेड कोर्सेस लिया अपने टेस्ट सीरीज के लिए, नहीं, कोई प्रेपरेशन के लिए नहीं लिया, राइट? आप हाँ सारी सिर्फ चीज, टेस्ट सीरीज के हाँ। लिए लिया मैंने, वो भी बहुत मिनिमल अमाउंट था। Yeah, okay. So that is what I want all of my viewers to know, that like nowadays we have so much of academies which are like taking a lot of money, which are making a lot of money from you guys. That the people don't understand that they are also going to teach you. They are not going to give you examination that you run behind it. At the end, what he is trying to say is what he has done. He has like most amount of time he has dedicated for his self studies, right, Ashish, if I'm not wrong? एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली सर। सेल्फ स्टडीज पे बहुत ज्यादा टाइम देना इंपॉर्टेंट है। आप कभी नहीं सीखने वाले जब तक आपको थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन सिखा रहे हैं। जब तक आप खुद से बैठ के खुद क्वेश्चन नहीं लगाओगे, खुद नहीं सॉल्व करोगे, खुद नहीं गलत करोगे, खुद नहीं सही करोगे, तब तक कुछ नहीं खाड़ पाओगे। This is what I've been telling from a long, long time, but still people run away, like run behind these academies. Okay, अगर आप कोई भी टीचर को फॉलो करते हैं यूट्यूब में, यू सर्च AFCAT, you have hell lot of content, right? So watch those, pick some teacher on YouTube, don't spend that amount of money on any coaching, rather spend on mock test, और दूसरे अगर 10 एकेडमी से 10 एकेडमी के मॉक टेस्ट लगाओ, दैट इज वर्थ इट। दैट इज व्हाट आई डोंट फील इट, इट्स सब्जेक्टिव डेफिनेटली। अगेन मेरे जो भी दोस्त रेकमेंड हुए, किसी कोई भी एकेडमी, मतलब कोई भी एकेडमी नहीं ज्वाइन किया था, मतलब कोई कोचिंग एकेडमी नहीं ज्वाइन किया था पढ़ाई करने के लिए। लेट इट बी कार्तिक, लेट इट बी परविंदर, राइट? परविंदर भी है, उसने भी कोई एकेडमी नहीं ज्वाइन किया था, नहीं उसने भी कोचिंग नहीं। एकेडमी। कार्तिक भी, अभी तू भी, ठीक है। सो यही चीजें मैं बताना चाह रहा हूँ। खैर, बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। मैथ्स की तो हो गया भाई कि तूने वापस हर रोज डेडिकेट एक किया। और सजेशन है मैथ्स के लिए, कि जब हम वीडियोस यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो इट्स बेटर कि आप एसएससी सीजीएल के वीडियोस देखो। जस्ट अ सजेशन, क्योंकि वो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बताते हैं, क्योंकि उनके क्वेश्चंस थोड़े हार्ड आते हैं, तो कॉन्सेप्ट में अंदर तक जाते हैं और अच्छी चीजें बताते हैं। तो मैं कभी एफकेट के नहीं देखता था मैथ्स के लिए, बेसिकली मैं एसएससी सीजीएल के कोई भी टीचर के देख लेता था, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बताते थे। और वो फिर जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो फिर अपने जब हम हमारे एफकेट के क्वेश्चंस करते हैं तो इजी हो जाते हैं हमारे। पॉइंट है। ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं। या वही वही बोलते हैं ना कि एफकैट इज इक्वल टू एसएससी सीजीएल और सीडीएस इज इक्वल्स टू एसीएपीएफ, ऐसा बोलते हैं ना, हाँ, क्योंकि सीडीएस हाँ, और सीएपीएफ बहुत यूपीएससी कंडक्ट कराता है, एफकैट खैर सीडैक कराता है, और एसएससी सीजीएल तो एसएससी कराता है। खैर हाँ। बहरहाल वो ठीक है। विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। मैथ्स तो हो गया भाई, तूने बायो बैकग्राउंड से तूने अच्छा खासा टाइम डेडिकेट किया होगा, आई एम श्योर ऑन दैट, ठीक है। सो दोज यस। पीपल हु आर वाचिंग, लाइक हु कम्स फ्रॉम एन इंजीनियरिंग और बीटेक और पीएससी, जिसमें जिनका मैथ्स है, सो दे हैव टू डेडिकेट हाफ द अमाउंट, ठीक है, जितना तूने किया है, क्योंकि तेरे एग्जैक्टली। को वापस जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ा था, ठीक है। व्हाट अबाउट रीजनिंग? रीजनिंग 33 क्वेश्चन आते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट होता है, डिसाइड्स वेदर यू आर गोइंग टू क्लियर इट और नॉट। मैं खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैंने जो पहला एफकैट क्लियर किया था, पूरा मैथमेटिक्स और रीजनिंग के बलबूते पे ही क्लियर किया था। आई एम श्योर तेरा भी रीजनिंग ही होगा, उसके बारे में थोड़ा सा यही बता। यही है। देखिए, रीजनिंग ऐसी चीज है कि आप ज्यादा कुछ किसी आप वीडियोस तो कभी मत देखना, वही सजेस्ट करूंगा। मतलब यूट्यूब वीडियोस उसके लिए मत देखो, क्योंकि वो कोई आपको दिमाग में नहीं डाल सकता है। दो फैक्टर रहते हैं, या कोई इंटेलिजेंस क्वोशिएंट किसी का ज्यादा है, कोई इंटेलिजेंट है, तो उसको रीजनिंग में कभी इशू नहीं आएगा। बट किसी किसी का ऐसा रहता है कि वो इतना चलाते नहीं है, हम इंटेलिजेंट रहते हैं पर दिमाग चलाते नहीं है। तो उसके लिए कुछ नहीं है, जो मैंने बुक बोला था कि एक बुक ले लो, उसके क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दो। जैसे 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 आप क्वेश्चंस लगाते जाओगे, आपको एक पैटर्न समझ आता जाएगा कि यार अच्छा ऐसे क्वेश्चन, अच्छा ठीक है। सो बहुत फोकस करो, रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फैक्टर रहता है जहां से हम स्कोर करते हैं। और बहुत इजी रहता है, उसमें दो तीन क्वेश्चन छोड़ के बाकी जितने रहते हैं
पूरे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। सो रीजनिंग ऐसी चीज है जिसमें कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बहुत हार्ड रहेंगे या जिसमें 2 आंसर्स आ रहे होंगे, बट उसके अलावा जो 28-29 क्वेश्चन होते हैं आप इजीली कर सकते हो। सिंपल मेरी स्ट्रैटेजी थी, जो भी बुक मैंने ली पूरे क्वेश्चन करता रहता था। ज्यादा टाइम मत दो, क्योंकि रीजनिंग आप अगर 30 मिनट्स दिन में दे रहे हो अपने एफकेट की प्रिपरेशन के लिए, और देना जरूरी है। कई लोग जिनका अच्छा रहता है रीजनिंग वो देते नहीं है और फिर उनका स्कोर डाउन हो जाता है। तो पूछो कि यार रीजनिंग में कितने, बोले यार कुछ नहीं, 25, 24, 23। सो वो भी गलत है। अगर आपको लग रहा है आपका रीजनिंग अच्छा है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में रहो, करते रहो करते रहो। और टेस्ट सीरीज इसलिए प्रेफर करता हूँ मैं क्योंकि वहां पे रीजनिंग आती जाएगी, आप करते जाओ, और कुछ क्वेश्चन जहाँ अटक रहे हो रीजनिंग में उसमें आप देख लो कि कैसे हो रहा है, बुक में होगा, या फिर अगर कहीं पे बहुत ज्यादा अटक रहे हो तो एक बार यूट्यूब पे चेक कर लो। पर यूट्यूब पे ऐसे वेस्ट टाइम मत करना कोई भी, कि सिर्फ रीजनिंग के वीडियोस देख के हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर यूट्यूब से आप कोई भी कंटेंट ले रहे हो सो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं यूट्यूब वीडियोस में जनरली। जैसे तेरे बहुत प्रिसाइज रहते हैं, तुझे पता है क्या पढ़ाना है, ठीक है, बट कई कई लोगों को सिर्फ ऐसा रहता है कि मेरे को आर्स बढ़ाने हैं, है ना। तो वैसे नहीं, क्योंकि तेरे में वीडियोस देखता हूँ वो बिल्कुल पता है क्या आने वाला है वही रहता है। बट कई लोग बस पढ़ा दे, उनको बस आर्स बढ़ाना रहता है, वो लोग पढ़ाते जाते हैं। सो सेलेक्टिव वीडियोस, बहुत सेलेक्टिव देखना चाहिए। ओके, सो आई कैन मेक इट आउट कि जो तूने बोला है कि सॉल्व मोर क्वेश्चंस ऑन रीजनिंग, ठीक है, सिमिलरली इट गोज फॉर मैथमेटिक्स, ठीक है। खैर, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स हैज टू बी द बेस फॉर एवरी ऑफ द एफकेट एस्पिरेंट, राइट। सिमिलरली आप जो तूने बोला वो भी, और कार्तिक ने भी यही बोला था कि आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग यही बेस है और सब लोग का यही होगा। आई एम श्योर कि कोई ऐसा नहीं है कि इंग्लिश और जीएस के बेसिस पे एफकेट देने जा रहा हूँ, ऐसा कभी होगा भी नहीं, कभी नहीं होने वाला हो, ठीक है। नहीं फिर होगा। आते हैं अभी, और ये भी है कि सिर्फ आप रीजनिंग और मैथ्स के बलबूते पे आज के डेट पे आप नहीं नहीं नहीं, क्लियर कर सकते। सो यू हैव टू सही गो फॉर जीएस एंड इंग्लिश। भाई इंग्लिश में जानता हूँ हम लोग को बात करना आता है, हमने, आई डोंट नो अबाउट यू बट मैंने कभी ग्रामर नहीं पढ़ा ऐसे लिख के कि इसके बाद ये आएगा उसके बाद वो आएगा। सो सेम। व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी फॉर इंग्लिश, फिर उसके बाद में जीएस में होगा। इंग्लिश का मैं सिंपली बताऊं, जब फर्स्ट टाइम मैं भी ऐसे ही हवे में ही था, जब फर्स्ट एफकेट दिया था मैंने, अरे इंग्लिश तो अच्छा है अपना, वी कैन टॉक इन इंग्लिश, वी कैन टॉक इन, वी कैन डांस इन इंग्लिश, वी कैन डू एनीथिंग इन इंग्लिश, बट वैसा कुछ नहीं है। ये जो इंग्लिश रहता है बहुत अलग रहता है। सो मैंने मुझे श्योर हो गया था जब मैं सेकंड ये जो मैंने क्लियर किया था 193 में, मैं इतना समझ गया था कि यार इंग्लिश को तुम अवॉइड नहीं कर सकते हो। इवन फॉर सीडीएस एफकेट आप इंग्लिश को हटा नहीं सकते हो, भले आप कितने भी अच्छे हो, आप बहुत ही अच्छी इंग्लिश शशि थरूर क्यों ना हो, बट आप इंग्लिश अवॉइड नहीं कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि कुछ रूल्स रहते हैं यार इंग्लिश के, जो रूल्स आपको पता होंगे, क्योंकि हम जनरल बात करते हैं तो वो चीज नहीं हम यूज करते हैं। स्पोकन हम जो इंग्लिश। हमें कन्वीनियंट रहता है वो रहता है, स्पोकन रहता है, बट जो ग्रामर है उसमें कुछ रूल्स है, और वो रूल्स आपको पता होना चाहिए, बहुत इजी होते हैं। आप एक बार पढ़ लोगे आपको हमेशा याद रहेंगे। सो इंग्लिश का यही बोलूंगा, और स्कोरिंग रहता है। देखिए यार इंग्लिश में मुझे दो चीज फील हुई, इंग्लिश आपका स्कोर अगर आपने पढ़ा हुआ है तो बहुत हाई कर देगा, और अगर आप हवा में गए हो इंग्लिश देने कि यार इंग्लिश तो आती है, वो आपका स्कोर बहुत नेगेटिव में जाएगा, और एफकेट में नेगेटिव बहुत भयंकर जाता है, हाँ। ठीक है। और हमें लगता है कि इंग्लिश मतलब, मैंने जितने लोगों से बात की वो बोलते हैं कि इंग्लिश आपका स्कोर डाउन लेके जाता है, क्योंकि हम अटेम्प्ट कर देते हैं और हम कैलकुलेट कर लेते हैं यार इंग्लिश तो सब सही क्या होगा, और फिर उसमें से गलत हो गया, फिर कट ऑफ क्लियर नहीं होता है। तो फिर सोचते हैं यहाँ वहाँ ध्यान देते हैं, बट रीजन रहता है इंग्लिश, क्योंकि आप इंग्लिश में लगा के तो आ चुके हो और वो गलत है, क्योंकि आपने कभी रूल्स पढ़े ही नहीं है कि वो रूल कैसे यूज होगा। सो इंग्लिश को भी टाइम दो, ज्यादा, इतना ज्यादा नहीं, इट डिपेंड्स ऑन आप किस लेवल पे हो। अगर कोई बहुत ही स्टार्टिंग में है जिसका इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, तो उसको बोलूंगा कि आप, क्योंकि आते हैं यार 25 क्वेश्चन आते हैं, वेटेज है अच्छा खासा है, तो इंग्लिश पे फोकस ज्यादा करो। बट अगर आपकी बहुत अच्छी है तब भी फोकस करो, हाफ एन आवर दो, थोड़ा बहुत दो, बट दो, उसको बिल्कुल हटा के मत चलो। ओके, सो अगेन इफ आई कैन मेक आउट कि आपने क्या बोला है कि इंग्लिश को आप स्किप नहीं कर सकते, सिर्फ एग्जैक्टली स्पोकन स्किल्स के बलबूते पे इंग्लिश कभी भी ग्रामर नहीं सुधार सकती है। सो नहीं। लाइक इवन इवन आई स्टिल रिमेम्बर कि बिफोर माय फर्स्ट AFCAT एग्जामिनेशन आई यूज्ड टू थिंक कि आई नो इंग्लिश, लाइक वी हैव ऑलवेज स्पीक इन इंग्लिश, लाइक कॉलेज में सब इंग्लिश में चल रहा है एंड ऑल। सो एंड हम व्हाट्सएप पे टाइप भी कर रहे हैं इंग्लिश में।
सो आई टेंड टू रियलाइज कि यार मेरे को वोकैब आती है बट उसके स्पेलिंग नहीं आते, क्योंकि सारों के शॉर्टकट है, PEOPLE को हम PPL लिखते यार हैं, ठीक है। सो ये चीज, ये बताओ। हाँ, ये रियलाइजेशन मुझे एग्जाम देते वक्त हुआ। सो यहाँ जो भी चीज टेक्नोलॉजी आई है, इट काइंड ऑफ गिव्स अ लॉट ऑफ डिमोटिवेशन आल्सो। या यू सेइंग देख समथिंग? यहाँ पे मेंशन करूंगा कि जो स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस रहते हैं वो हम नहीं ध्यान देते हैं यार, मतलब कुछ भी रहते हैं वो, बट वो ऐसी चीजें आप एक बार देख लोगे आपको याद रहेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आप इंग्लिश स्किप नहीं करोगे, आप वो एक बार नजर में आ जाएगा और आप वहाँ सही करके आ जाओगे। और इंग्लिश के क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं इसमें, थोड़े हार्ड आएंगे, थोड़े कंफ्यूजिंग आएंगे, बट बहुत सारे बहुत इजी आते हैं कि एक बार देखे भी हो तो आप आंसर कर जाओगे। ओके, सो अगेन, सो इंग्लिश में मैं क्या कह सकता हूँ, जो आपने बोला आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, यू कैन नॉट, हवे में नहीं लेके जा सकते तुम, आपको नहीं पढ़ना कभी नहीं। पड़ेगा इंग्लिश को भी। लाइक इंग्लिश हैज अ इक्वल वेटेज 1/4 है यार, 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 100, लाइक एग्जैक्टली 1/4 75 मार्क्स आपको दे रहा है। सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप, राइट? एक टाइम को तो आप मैथ स्किप करो क्योंकि 18 क्वेश्चन आते हैं, बट इंग्लिश को स्किप नहीं कर सकते। एंड आई नो पीपल विल नॉट स्किप मैथमेटिक्स बिकॉज लाइक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं। ओके, इंग्लिश भी हो गया। अब आते हैं भाई इंपॉर्टेंट, जीएस, ओके। इंग्लिश में एक चीज और यार, जब हम रिकमेंड हो जाते हैं ना तो वहां पे फिर खेल, अभी हम स्टार्टिंग में ध्यान नहीं देते, हम बोलते कट ऑफ क्लियर हो जाए, SSB आ जाए। जब एक बार रिकमेंड हो जाते हो ना, फिर आपको स्कोर और मेरिट का सीन समझ आता है। तो आपका जो मेरिट डिसाइड करता है वो रीजनिंग और मैथ्स आपका कट ऑफ क्लियर करवाएगा, ठीक है। GS लास्ट में बात करते हैं, ये दोनों आपका कट ऑफ क्लियर करवाएगा, और जो इंग्लिश है आपको मेरिट लिस्ट में ऊपर लेके जाएगा। परफेक्ट। सो अगर आपको स्कोर करना है, जैसे 193 मेरा था, मेरे साथ जो थे उनका 205 था, 220 भी था, उनका थोड़ा सा इंग्लिश फैक्टर मुझे लगा कि हाँ यार उन्होंने वहां पे और स्कोर किया। Okay, okay. So English cannot be skipped, should not be skipped. What you are trying to say? यस। Okay, fine. GS, GS इंजीनियरिंग, तू साइकोलॉजी कर रहा है, मैं जानता हूँ। जीएस से बहुत दूर है हम, मैं भी बहुत दूर था, तू भी बहुत दूर था। अभी थोड़ा फेमिलियर हो रहा है जीएस, बट स्टार्ट तो कहीं से तो किया हुआ है। हम कुछ नहीं से कुछ तो बने। स्टार्टिंग जो फेज था कैसे किया, क्योंकि एफकेट का जीएस अगेन इज अनप्रिडिक्टेबल। कुछ चीजें हम बहुत। मेक आउट कर सकते हैं कि हाँ, इसमें से हिस्ट्री में से 4-5, पॉलिटिक्स में से 4-5 आते हैं, but still I cannot be so sure, no, nor you can be, but still you are prepared. Like 193 अगर स्कोर करना है तो आपको चारों को टच तो करना पड़ेगा, चारों टॉपिक को, राइट? करना तो पड़ेगा। यू कैन नॉट बी लाइक, अगेन आई एम सेइंग दिस, कि सिर्फ मैथमेटिक्स, इंग्लिश और रीजनिंग। जीएस तूने टच किया है, वो क्या? ठीक है, आल्सो कमिंग टू जीएस जो एफकेट का होता है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है। मतलब आपको पता है कि कौन से टॉपिक से, स्पोर्ट्स से आएगा एक दो क्वेश्चन। कई बार ऐसा होता है करंट अफेयर्स से हम सोचते हैं कि जैसे लास्ट बार करंट अफेयर्स आया नहीं, एक क्वेश्चन भी नहीं आया, ठीक है। सो ऐसा होता है, तो एफकेट का जीएस बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कुछ भी, जैसे कि तेरे वीडियोस है ये देखते रहो, क्योंकि यू नेवर नो कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा उसमें। आप कुछ ऐसे, इसलिए मैंने जो एक बुक बोली है वो बुक को तो पढ़ ही लो, कोई भी बुक आप लोगे, क्योंकि ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीज है, कुछ भी आता। और मैं एक ट्रिक बताऊंगा, बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो मजा आ जाएगा आपको, क्योंकि 2-3 लोगों के लिए ये वर्क की है और अच्छी की है। मेरे लिए भी थोड़ी बहुत, मान लो 5-6 मार्क्स और दिलाए थे, किसी किसी को ज्यादा भी दिला सकती है। मैं ट्रिक एंड में बताऊंगा एक, बट उससे पहले जीएस का यार, मैंने सीडीएस और एफकेट का जीएस साथ में पढ़ा, ठीक है। तो मैं जब सीडीएस का पढ़ता था तो एफकेट का ऑटोमेटिकली मेरा प्रिपेयर होता गया। बट अगर ऐसे है तो टेस्ट सीरीज लगा रहे, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है, तेरे वीडियो से भी क्वेश्चन आ जाएंगे। मतलब कुछ भी आप पढ़ते रहो, जीएस को ऐसा मत करो कि अनप्रिडिक्टेबल है तो पढ़ ही नहीं रहे, आप पढ़ते रहो, ठीक है। एक जो मैं बुक इसलिए सजेस्ट करूँ कि बुक आपके पास रहती है तो आपको पता रहता है क्या पढ़ना है, और जो ऊपर ऊपर का उसमें सब कवर्ड रहता है, और ऊपर ऊपर से एक दो क्वेश्चन तो मतलब आ ही जाएंगे ना किसी टॉपिक से। तो एक बुक, उसका जीएस पढ़ लो। वीडियोस, तेरे वीडियोस पूरे अच्छे रहते हैं, तेरे वीडियोस पूरे एक बार मतलब सीरियसली अच्छे रहते हैं, तो तेरे वीडियोस एक बार गो थ्रू कर लो, कि पूरे मतलब देख लो, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, जैसे भी देखना है देख लो, अगर किसी के पीछे के मिस हुआ है तो सिलेबस देख लो, सिलेबस देख लो कि कहाँ से क्या है, और जीएस को कंटिन्यूस पढ़ते रहो। अगर तुम 1 घंटा दिन में जीएस के लिए निकाल रहे हो ना, तो पढ़ते रहो, कुछ भी पढ़ते रहो, कुछ भी देखते रहो,
क्योंकि इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आता है। सो जस्ट कीप ऑन स्टडिंग, कहीं से भी वीडियोस देखते रहो, बुक पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो जीएस। So what about history, bro? सो हिस्ट्री बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो तेरा वीडियो था, वो वीडियो देख लो एक बार, क्योंकि पॉइंट्स अच्छे कवर्ड है और शायद एक दो वीडियो और आ लाएंगे। सो आप मॉडर्न हिस्ट्री देख लो, वहां से एक दो क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। सो कोई तेरा वीडियो देख लो आराम से, या फिर और ये है, और साथ में एक बुक भी देख लो, मॉडर्न हिस्ट्री ऊपर ऊपर से देख लो, क्योंकि आपको पता नहीं कितने डेप्थ में आएगा। सो जहां से आपको सोर्स मिल रहा है कोई भी चीज किसी भी टॉपिक का, वो देख लो। पॉलिटी का क्या? पॉलिटी में बेसिकली बहुत ऊपर से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ऊपर से आर्टिकल्स वगैरह एक बार देख लो, फंडामेंटल राइट्स वगैरह ये सब यहीं से क्वेश्चन आते हैं। बस एक बार देख लो ऊपर ऊपर से, और केसेस देख लो, शायद ही वहां से क्वेश्चन आए। मतलब वही है ना यार, अगर आप सीडीएस के लिए पढ़ रहे हो, प्रेसिडेंट वगैरह आपने पढ़ा हुआ है, या आपने प्राइम मिनिस्टर पढ़ा हुआ है, सो वहां से कोई क्वेश्चन उठ के आ जाए। बट पॉलिटी मुझे लगता है एफकेट का इजी रहता है, उतना हार्ड नहीं रहता। और फिर स्पोर्ट्स एंड ऑनर्स हो गया, अवार्ड्स हो गए, हेडक्वार्टर्स हो गए, आर्ट एंड कल्चर हो गए। सो दीज आर टॉपिक्स ब्रो, लाइक वी नो कि हाँ ये सब टॉपिक्स है जो कि एफकेट के साइट पे भी लिखा हुआ है कि ये टॉपिक से क्वेश्चंस आएगा। सो आई एम श्योर तूने ब्रशअप किया होगा ऊपर ऊपर से डेफिनेटली कि जीएस तेरा फोर्थ प्रायोरिटी था। डेफिनेटली सबका होता है, सिर्फ तेरा नहीं सबका होता है। इवन मेरा भी जीएस फोर्थ प्रायोरिटी है। आई वेंट ऑन टू क्लियर, आई टेल यू 25 में से 19 क्वेश्चन सही करके आया था मैं एफकेट 1 में। सो लाइक उतने लेवल का मैं पढ़ाई कर रहा था जीएस के लिए, एंड ऑलमोस्ट लाइक हिस्ट्री छान मारी थी। यार बहुत, मतलब फिर तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस करके आया है तू। सो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, अगर ऐसा कुछ है ना, सो वीडियोस देखो। जब तूने चैनल थोड़ा लेट स्टार्ट किया भाई ठीक है, बट अगर यार इतना तूने इतना स्कोर किया है, तो आई वुड सजेस्ट जो देख रहे हैं, क्योंकि आप फिर इधर उधर मत भागो। मतलब जेन्युइन सजेशन है, इधर उधर मत भागो इन टॉपिक्स के लिए। अगर वीडियोस हैं इसके तो देख लो, क्योंकि जीएस बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। आप 100 जगह से पढ़ लोगे, उसमें से एक क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर एक वीडियो देख लोगे उसमें से 3 आ गए। सो इट्स बेटर कि अगर एक कोई मेहनत करके एक वीडियो डाल रहा है, ठीक है, वो उसने उसकी खुद की रिसर्च कर रखी है, और अभी 15 दिन ही बचे हुए यार, क्यों आप इधर उधर भाग रहे हो? अगर एक सेंटर पॉइंट आपको मिल रहा है अच्छे वीडियोस का, तो वीडियोस देख लो। क्योंकि मैं वही जीएस बोल रहा हूँ, जीएस बहुत वो प्रिडिक्ट कोई नहीं कर सकता है। और अगर तू कंटेंट पूरे मिला के डाल रहा है, रिसर्च करके डाल रहा है, तो आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ फॉर जीएस। कूल मैन, लाइक हमने जैसे चारों जैसे चीजें। जैसे तेरा ओलंपिक वाला वीडियो था, मैंने देखा एंड इट वाज रियली गुड। ठीक है, और आ सकता है आ सकता है ओलंपिक का क्वेश्चन आएगा, तो उस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें बेसिक बेसिक एवरीथिंग वाज कवर्ड। मेरा ये कहने का मतलब। ओलंपिक पे क्वेश्चंस के भी अलग से वीडियो बनाया है, स्पोर्ट्स से भी अलग से वीडियो बनाया है, और ओलंपिक की जो हिस्ट्री है उस पे भी वीडियो बनाया है। एंड अभी स्पोर्ट्स के और भी जो है क्वेश्चंस वो डाल दूंगा। एंड हिस्ट्री तो चल ही रही है मेरी, अभी हिस्ट्री मैंने एकदम मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रहा हूँ, क्योंकि इट्स नॉट वाइज फॉर नाउ फॉर पीपल फॉर नाउ टू स्टडी गो फॉर होल हिस्ट्री। इट्स नॉट लाइक गुड एग्जैक्टली। फॉर देम, लाइक उनको फिर हिस्ट्री पढ़ने के लिए 3 महीने चाहिए यार, पूरी हिस्ट्री। सो अरे आप समझ रहे हो कि 15 दिन में कैसे पढ़ लोगे, वो भी सिर्फ हिस्ट्री। वही सो इट्स वही नॉट वाइज। अगर पढ़ रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री ही पढ़ो अभी फिलहाल। एंड ऑल्सो पॉलिटी की सही भी है। डालूंगा मैं, एंड आर्ट एंड कल्चर के भी जो भी है। खैर बहरहाल यार हमने मैथमेटिक्स से, रीजनिंग से, जीएस से, इंग्लिश ने पूरा कर लिया। I want you to give some tips for those people who has just woken up कि यार हाँ 15 दिन है, मुझे क्लियर करना है। ऐसे भी लोग हैं, ठीक है। सो कि क्लियरली आई डोंट लाइक दोस काइंड ऑफ पीपल दो, बट पीपल आर देयर। और रादर अगर जो ठीक पढ़ है, भी रहे हैं लास्ट के 15 दिन में, तुझे क्या लगता है कि क्या उनको ऐसा अप्रोच रहना चाहिए? टिप्स। देखो यार, लास्ट के 15 दिन में अगर आपने पढ़ा है बहुत अच्छा, नहीं पढ़ा है अभी टाइम है। 15 दिन अगर आप बहुत अच्छे से डेडिकेशन के साथ करते हो ना, आप क्लियर कर सकते हो आपका। फर्स्ट, टेस्ट सीरीज कोई सी भी ज्वाइन करो डेली। अगर आपने अभी तक बिल्कुल कुछ नहीं किया है, तो दिन में 2 टेस्ट करो, उनको अच्छे से पूरा करो। प्लस जीएस के लिए तेरे वीडियोस फॉलो करते रहो, ठीक है, क्योंकि जीएस के लिए अभी मत भागो कहीं। यही बोलूंगा, जीएस के लिए अभी कहीं भागने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। तेरे वीडियोस अच्छे रहते हैं, उनको देखो, आपका जीएस कवर हो जाएगा यहाँ पे। इंग्लिश, आप जो भी बुक है, बस एक बार रूल्स वगैरह देख लो। एंड जब आप टेस्ट सीरीज कर रहे हो, तो आपको पता चलेगा मुझे किस टाइप के क्वेश्चंस में इशू आ रहा है। जनरली हमने 10 तक पढ़ा हुआ है, तो बहुत कोई क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं, ठीक है। सो टेस्ट लगाने से डरो मत,
क्योंकि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट। मैं टाइमिंग पे बता देता हूँ यार, टाइमिंग पे ना आप सबसे पहले, ये मेरी फर्स्ट गलती थी कि मेरे को पता नहीं था कि कैसे करूँ क्वेश्चंस, कि पहले कौन सा पार्ट लूं। तो फर्स्ट टाइम मैंने गलती की थी, मैं पहले इंग्लिश ले लिया, जीएस ले लिया, मैथ्स करते करते फिर सोचा रीजनिंग करूंगा, रीजनिंग के लिए टाइम ही नहीं बचा था, तो मेरा क्लियर नहीं। अब भी सबके लिए यही सजेशन है, जब भी टेस्ट सीरीज लगाओ सबसे पहले रीजनिंग करो, इंग्लिश करो। अगर ये दोनों को आप 1.5 घंटे में भी खत्म कर देते हो तो हाफ एन आवर इज मोर देन इनफ फॉर इंग्लिश एंड जीएस। जीएस आपको देखना है, टिक लगाना है, आपको कुछ सोचना नहीं। तो 10 मिनट्स, मतलब ये मैं बहुत मोटा मोटा बोल रहा हूँ, 10 मिनट्स 25 क्वेश्चन फटाफट फटाफट करोगे, हो जाएगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है आप सब पे, सब्जेक्टिव चीज है यार। मेरे लिए ये स्ट्रैटेजी रहती थी कि मैं 1.5 घंटा आराम से रीजनिंग और इसके लिए देता था। जैसे ही वहां पे दिखता है कि ओके 120 मतलब हो गया, 1 घंटा 20 मिनट हो गए, मैं स्विच कर जाता था इंग्लिश पे, इंग्लिश करता था, पूरा खत्म करता था, देन जीएस। फिर जो टाइम बचा मैं वापस आ जाता था। बट सबको इंपॉर्टेंट समझो और सब पे करो, टेस्ट सीरीज लगाते रहो, इसके वीडियोस देखते रहो, एंड इंग्लिश पे थोड़ा फोकस रहो। और एक और चीज यार जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अब सिर्फ बहुत टाइम, कम टाइम बचा हुआ है, सो कोई नया टॉपिक मत उठाओ, बिल्कुल ही मत उठाओ। अगर आप बिल्कुल अभी फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो तो भी मत उठाओ, टेस्ट सीरीज करो, वीडियोस देखो, नया कुछ मत उठाओ। और अगर आप बहुत टाइम से पढ़ रहे हो इस चीज के लिए, जस्ट फोकस ऑन योर रिवीजन, कोई नया टॉपिक मत उठाओ। That is what which I always say to my viewers guys, like last 15 दिन है, अभी कोई जरूरत नहीं है नए टॉपिक उठाने की, मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, ठीक है। That's it. If you have any sort of doubts, comments, comment करो, that's more than sufficient, I'm there to answer that, ठीक है। And I don't want anything else guys, the main and the utmost priorities that you should understand and you should clear the examination. आप मेरे वीडियोस देखो ना देखो, doesn't matter, प्रायोरिटी ये कि यार सब अपना देखते हैं। डेफिनेटली आशीष खुद के हिसाब से पढ़ता था, मैं खुद के हिसाब से पढ़ता हूँ, आप भी खुद के हिसाब से पढ़ो। फाइनल गोल आपका ये होना चाहिए कि आप क्लियर करो, कहीं से भी क्लियर करो, ठीक है। ये जस्ट मैंने आशीष को लाया। थैंक यू सो मच भाई फॉर कमिंग। डेफिनेटली ओटीए के लिए भी अलग एंड से ट्रिक, द लक या लक फैक्टर आई वांटेड टू टेल, एक हाँ। सो यार एक चीज होती है, ये किस्मत का खेल है, इस पे कोई ज्यादा ध्यान मत देना। मतलब अगर ये चीज काम कर गई तो कर गई, नहीं की तो नहीं की वाला सीन रहता है। जनरली क्या होता है कि शिफ्ट तो किसी को भी कैसे भी अलॉट हो सकती है, किसी को पहली शिफ्ट मिलेगी, फर्स्ट डे मिलेगा, सेकंड डे मिलेगा, ये उन लोगों के लिए जिनकी शिफ्ट बाद में आएगी। फर्स्ट वाले डिमोटिवेट मत होना कि यार मेरा तो ये नहीं है, कोई इशू नहीं है, इससे आ भी सकते नहीं भी आ सकते। बट जो लास्ट दिन बचेंगे ना आप लोगों के, जैसे कि 29 की किसी की शिफ्ट है, उसके पास 2 दिन है, जो भी शिफ्ट हो रही है यूट्यूब पे, जो भी एनालिसिस आ रहा है, जो भी कुछ आ रहा है, उसको अच्छे से देखो, क्योंकि एफकेट क्वेश्चंस रिपीट करता है, टाइप्स रिपीट करता है। सो ये एक चीज है जो मेरे लिए काम करी थी लास्ट, जब मेरे 2 दिन बाद मेरे लास्ट शिफ्ट लगी थी पिछले बार। सो मैंने यही किया, मेरा रिवीजन भी होता रहता था उनका एनालिसिस देख के, जो भी एनालिसिस डालता था, मेरा हर शिफ्ट का रिवीजन भी होता गया, और प्लस क्वेश्चंस आए थे। सो इट्स लक फैक्टर। ऑब्जर्वेशन लाइक लक फैक्टर, आप या इस पे 100% डिपेंड नहीं कर सकते। नहीं डिपेंड नहीं होना, इट इज जस्ट चल गया तो चल गया वाला सही सीन। बात है, वो एंड रिवीजन हो ऑब्जर्वेशन रहा है होना। यार, रिवीजन हो रहा है आपका, एनालिसिस देख रहे हो, आपका रिवीजन तो हो ही रहा है ना। Perfect, ओके perfect. दैट्स इट। So, thank you so much, bhai. Ashish, like I really appreciate थैंक यू। you. You come here and give your valuable time right now, and I'm not going to leave you, bro. OTA का भी चाहिए, SSB का भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि I see you are doing a जरूर यार, जरूर। psychology पढ़ रहा तू, तो psych बहुत important रह जाता है SSB के लिए। So वो भी वीडियो आएगा। सही है। फिलहाल आप भी AFCAT के लिए कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। All the best for those viewers who are preparing for AFCAT. Do not stuck yourself in those potholes where you don't want to stuck yourself. Be very precise right now. It's a revision time, not the preparation time. You just have to focus and what you have studied. Believe in yourself. Do not कि मुझे ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी भूल गया, वो भी भूल गया. Do not lose the confidence. Keep your motivation high and talk to yourself. Soliloquy is the word which I've learned this morning. Soliloquy matlab talk to yourself. Say this to yourself every morning. I'm going to clear that AFCAT examination this month. I'm going to get recommended. Similarly, this guy is an example for all those who thinks that मेरा maths weak है, मैं AFCAT नहीं दे सकता. I'm not going to clear this AFCAT examination. I've got this example, man. We studied together, and now it gives immense happiness that these guys are clearing and getting recommended. I'm like, yeah, bang on. That is what आने वाला है, you are, तू भी guys. आने वाला है, आने वाला है, जल्दी आने वाला है।
जल्दी आने वाला है। देखेंगे भाई, देखेंगे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, होप सो, आ टच जाओगे वुड। यार, बस खैर बहरहाल, थैंक यू सो मच भाई, आई विल नॉट वेस्ट योर मच ऑफ अ टाइम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर व्यूज। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी यार। ओके, चलो बाय। सो आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा, डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आया होगा, एंड आई एम श्योर आप दिमाग में अपनी प्लानिंग कर रहे होंगे, फाइन, प्लानिंग कर रहे होंगे। सो डोंट वरी गाइज, आई हैव लाइक, मैंने जो भी वीडियोस बनाई है हिस्ट्री पे या फिर पॉलिटी पे, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, आई विल बी देयर टिल द लास्ट, जब तक आपका AFCAT एग्जामिनेशन नहीं हो जाता, फाइन। एंड यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी वाया कमेंट, ठीक है, I can definitely answer your any query, fine, I can definitely, if your question is valid, I can make a different video out of it also. The main motive is, again guys, as he talked to you, as I was talking to you in the video, the main motive is for you to clear that examination, fine. The first hurdle is always to clear the examination, and then the second problem, fine. So do not lose your hope, that is all I want from you, fine. So the moment like I'm coming up with videos on a regular basis, on a daily basis, you are only 15-16 days left for your AFCAT examination, subscribe karo Winners Guide channel ko. And also if you want to practice more and more questions, apne Winners Guide के Instagram channel को भी subscribe follow करो, क्योंकि we come like I post 3 posts every day ऑफ क्वेश्चंस, फाइन, जो कि AFCAT में पूछे गए हैं। सो आप क्या है वहां पर भी प्रिपेयर करते हो। AFCAT हमारे यूट्यूब के पेज के कम्युनिटी पोस्ट पे जाके देखो, हर रोज एक एक क्वेश्चन स्केड्यूल्ड है यूट्यूब पे, फाइन। सो यूट्यूब पे आई कम अप विथ एवरी डे वीडियोस, वन वीडियो, फाइन, वन वीडियो एवरी डे पर डे। ऐसा भी नहीं है कि कुछ तो भी बकवास कर रहा हूँ, ऑल आर टू द पॉइंट, फाइन। कम्युनिटी पोस्ट पे जाके देखो, एवरी डे वन क्वेश्चन अ डे। और ऑल्सो विनर्स गाइड के आप इंस्टाग्राम पे जाके देखो, हर रोज 3 पोस्ट जाते हैं जो कि क्वेश्चंस रिलेटेड है, मैथमेटिक्स, डिपेंडिंग ऑन मैथमेटिक्स, जीके और वो सब क्वेश्चन आते हैं, 3 पोस्ट अ डे जाते हैं, फाइन। सो 1-2, ठीक है, विथ 1 वीडियोस, सो 4 क्वेश्चंस प्लस 1 वीडियो हर रोज चल रहा है। सो गाइज वी आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू गाइज, व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इज जस्ट सब्सक्राइब करो और फॉलो करो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फाइन। सो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो गाइज, कुछ तो अप्लाई करो अपने लाइफ में, एंड स्टार्ट चेंजिंग द वे you know start changing your perspective towards your examination, then only you will expect some different results from yourself, fine. So with that note, I will end this video. If you are new to this channel, again I urge you to subscribe, like, and do share with those people who are giving the AFCAT examination. Thank you so much. Have a good day. Bye bye.